ہینڈ پکڈ آدمی کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، اس میں سے نکالا جا رہا ہے بغیر کسی اور سے مشاورت کیے. یہ تو کسی حوالے سے بھی باعث تعجب بات ہے. چلیں یہ تو وہ جس طرح کریں گے، ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میں ہر ایک سے پوچھوں گا. ایک عوام کے سامنے میرا یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ سامنے کچھ اور کر رہے ہیں، بیہائنڈ دا سین کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ پبلک کے سامنے لائی جائیں. ہر ایک سے جو بھی وہ اس چیز میں شامل ہیں، یا وہ ایک کرسٹل کلیئر پکچر سامنے آنی چاہیے. لیکن چونکہ ابھی وہ آپ نے کہہ دیا کہ دیکھتے ہیں ابھی کہ دوبارہ وہ اس ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے، جو کہ انہیں بیٹھنا چاہیے، کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بہت بڑا عزت اور آنر دیا ہے کہ پوری کمیونٹی ہے، اور اس میں سے ہم نے 3 بندے چنے ہیں کہ آپ اس چیز کو سالو کریں. لیکن بھائی علی، میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا، آپ سابقہ نائب صدر بھی ہیں اس والتھم فارس اسلامیہ ایسوسی ایشن کے، اور موجودہ بھی آپ کمیٹی میں ہیں، کہ یہ جو آپ نے اداروں کی ووٹنگ بند کی ہے، اور مختلف جو ہمارے اپنے ادارے تھے، خصوصی طور پر سنی تھے اور دوسرے بھی، آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں؟ خالد بھائی، پہلے میں اس کو 2 حصوں میں جواب دوں گا. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ باقی جو ادارے ہیں ان کو ہم نے ممبرشپ سے بند کیا ہے یا روکا ہے، یا جو بھی اس کو آپ لفظی بیان کر لیں، ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے، کسی کو بند نہیں کیا ہے. ہم نے ہر ایک کو اوپنلی انوائٹ کیا ہے، جس کا اس دن خالد صاحب نے بھی اعلان کیا تھا، بشرطے کہ ان کی افیلیشن اس ادارے سے ہو. اس کو یاد نوٹ کیجیے گا، بشرطے ان کی افیلیشن اس ادارے سے ہو. والتھم فارسٹ ایک بہت بڑا ایریا ہے. آبویسلی جب یہ مسجد بنی تھی اس وقت یہ پہلی مسجد تھی، اتنی بڑی مسجد تھی، پورے والتھم فارسٹ کے لیے تھی. تو بنانے والوں نے وہ کانسٹیٹیوشن بنایا تھا کہ سب کے لیے، جو اب بھی سب کے لیے اوپن ہے استعمال کرنے کے لیے. اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے، سب کے لیے اوپن ہے اور کرتے بھی ہیں، نہ کہ صرف والتھم فارسٹ والے، والتھم فارسٹ سے باہر کے بھی لوگ. لیکن جہاں تک اس کی ممبرشپ کا تعلق ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 13-14 مساجد ابھی والتھم فارسٹ میں ہو گئی ہیں. سبھی نے اپنے اپنے محدود کانسٹیٹیوشن بنا کے ٹرسٹ بنا لیے ہیں، اور ان کی افیلیشن ان اداروں سے ہی رہ گئی ہے. وہ ان کے اپنے افیلیٹڈ آدمیوں کے علاوہ کسی کو ممبرشپ نہیں کرتے، اور بعض بلکہ زیادہ تر نے تو ابھی اپنے اداروں کو ٹرسٹ بنا دیا ہوا ہے. جیسا کہ یہ کوئنز روڈ مسجد آپ کے سامنے ہے، وہ مینس فیلڈ ہے، اور توحید ہے، یہ نور الاسلام ہے، یہ ہمارا دارالعلوم ہے، بلکہ دارالعلوم تو اس مسجد کا حصہ تھا. تو اس کو کتنے دیر رہا، پھر وہاں لوگوں نے، اس کی انتظامیہ نے اس کو ایک ٹرسٹ بنا کے ٹوٹلی ان اپنے ممبران تک محدود کر دیا ہے. حالانکہ وہاں پہ بھی ہر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن کوئی دوسرا ممبر بننے نہیں جاتا، اور نہ ہی ہم جاتے ہیں. سو اسی حوالے سے یہ پچھلے 2-3 بار کلیئر کروں گا کہ جو ٹرسٹ بن جاتے ہیں ان کی ممبرشپ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پر ہر ایک کو مکمل آزادی ہے، ایک کھلا میدان پڑا ہوا ہے، تو وہ ہر بندے کو ادھر کوئی، میں کہتا ہوں کہ جس طرح کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں تو کوئی بھی آ کر وہ جسٹ فارم فل کر دے. کوئی، میں نے ایسے کئی لوگوں کو، میں نے خود ممبرشپ ادھر دیکھی ہے کہ ان کا مسلک نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کی ممبرشپ لینے کے لیے اور اپنی ذاتی وہ کہہ لیں کہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، میں نے چند ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے عقیدے نہیں تھے، جو آپ کا فارم ہے وہ بھی انہوں نے بھرے ہیں. تو یہ آپ اس کو کس طرح یہ دیکھ رہے ہیں کہ خالد بھائی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے فارم پہ پراپر ایک اوتھ ہے. جی اگر وہ اس اوتھ کو غلط اٹھاتا ہے، اس کا عقیدہ وہ نہیں ہے، اور جسٹ اس کو سم ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی دوسرا اس کے لیے سائن کر دیتا ہے، حالانکہ یہ ٹوٹلی قطعی غلط ہے.
जिनको तो हम जानते हैं हम उनको इनरोल नहीं करेंगे। जो खुद ही कुछ लोग इनसे वाबस्ता नहीं है हमारे इदारे से, वो खुद ही नहीं आ रहे। जैसा कि हमने उस दिन चौधरी दिलपजीर साहब से सुना कि उन्होंने कहा भाई मैं तो इस इलाके में ही नहीं रहता, लिहाजा मैं मेंबर नहीं बन रहा, नहीं बनूंगा। सो इसी तरह मैं कहूँगा कि जो लोग दूसरे अदारों से मुंसलिक है उनको खुद ही यहाँ पर सिर्फ इसलिए मेंबर बनने के लिए नहीं आना चाहिए कि भाई अभी इलेक्शन का दौरा है तो हम भी चलें अपने वोट बना के किसी मखसूस पार्टी के हक में वोट डालने के लिए वोट बनाए। जो कि कतई मैं समझता हूँ उन लोगों को खुद ये सोच होनी चाहिए कि ये तो सिर्फ और सिर्फ इस मस्जिद में मुदाखलत से अलावा और कुछ मकसद नहीं है उनका। अगर वो इस मस्जिद में आते ही नहीं, नमाजें ही नहीं पढ़ते, 4 साल के बाद जस्ट आए भाई हमें भी एक पाउंड लेके मेंबरशिप का हक दे, हम भी वही हक रखें जो यहाँ पर साल लोग मकामी हैं अदारे हैं, हम हर एक को वेलकम करते आए। इस अदारे से मुंसलिक हैं तो ठीक है, नहीं है तो हो जाएं, बस इस अदारे से मुंसलिक। ये नहीं कि आप किसी और ट्रस्ट के मेंबरान हों, उस ट्रस्ट से एफिलिएटेड हों, यहाँ पर आए भी नहीं और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आके तो मेंबरशिप बनाने के लिए आ जाएं। और प्लस आपको पता है पिछली 2 दफ़ा मेंबरशिप बाहर के लोगों की होती रही है, गलत अदारों की होती रही है। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कि दोबारा नहीं बल्कि तीसरी बार हम इसी प्रोसेस से ना गुजर पाएँ कि लोग आके इनरोल हो जाए और फिर बाद में पता चले भाई ये तो मेंबर नहीं थे, ये मेंबर थे, तो सारी मेंबरशिप क्वेश्चनेबल हो जाए। क्योंकि अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड होकर ये उसका हिस्सा हो गया हुआ है कि ओनली जो लोग इस अदारे से अफिलिएटेड हैं प्लस दूसरे अदारों से अफिलिएटेड नहीं हैं या उन अदारों के ट्रस्ट के मेंबर नहीं हैं या उन अदारों से मुंसलिक नहीं है, कमेटी में मेंबर नहीं है, ये उस चीज का हिस्सा हो चुका है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल देखो खालिद भाई, मैं कौन होता हूँ या मुझे क्या राइट है या अख्तियार है या किसी दूसरे या तीसरे को क्या राइट अख्तियार है, ये इसको दोनों अपोजिशन पार्टीज़ और मौजूदा इंतज़ामिया ने भी जब इलेक्शन का प्रोसीजर सेट करते हुए तस्लीम किया था और उससे पहले कमेटी ने भी ये किया हुआ था। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है और चैरिटी कमीशन ने भी हमें बारहा कहा कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए करें। लेकिन ये जो आप अभी आपने ये सालसी कमेटी बनाई है, ठीक है, वो तो उसके रिजल्ट जो हमारे सामने आएंगे वो तो देखेंगे कि क्या होता है क्या। आप अभी ज़रा हट के ये सवाल है कि अभी आप दोबारा मेंबरशिप कब खोलेंगे? इंशाल्लाह मेंबरशिप तो खुली थी और जारी रहती 1 हफ्ता और उसका 17 तक था। अगर ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अपोजिशन वाले क्रिएट नहीं करते, जो कि बरमला हर एक आदमी को पता है कि वो लोगों ने दारुल में जाके संडे को मीटिंग करके प्लान करके 70, 80, 100 या 150 आदमी लाए डिलिबरेटली उस दिन हरास करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए, जिसकी वजह से आपको पता है कि मेंबरशिप सस्पेंड करनी पड़ी, पुलिस आके बुला के उनको दफ्तर से निकलवाना पड़ा। और फिर फर्दर मोर कमिंग फ्राइडे वो लोगों ने दोबारा थर्सडे नाइट को वहाँ पे अपोजिशन वालों ने मीटिंग करवाई दारुल में और मीटिंग करवा के प्लान के तहत यहाँ आके जुमा के रोज़ जैसा कि आपको पता है कि चौधरी खालिद साहब ने ऐलान किया कि भाई मेंबरशिप जारी और सारी है हस्बे मामूल, तो विदाउट एनी इंटिमिडेशन हरासमेंट सबके लिए मेंबरशिप खुली है जो अफिलिएटेड है। लेकिन फ़ौरन ही वहाँ पे हंगामा खड़ा करवा दिया, जस्ट एक सवाल को बुनियाद बना के भाई ये क्यों है, पुलिस क्यों आई थी। हालांकि जिन्होंने सवाल किया था उस दिन उन सबको पता था, खुद मौजूद थे कि पुलिस क्यों आई थी। भाई अली मैं ये अभी समझता हूँ तो अभी मैं मुझे बात पूरी करने। उस दिन मैं उनसे सवाल करता कि वो लोगों ने क्या अचीव किया। जुमा के दिन लोगों के 10 मिनट या 15 मिनट ज़ाया करवाए, उनकी सुनतें ज़ाया करवाई, उससे शोर शराबा करके अचीव क्या किया कि ये अचीव किया कि भाई हम ये हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मस्जिद का
नमाजें ख़राब करवाएंगे, जो उन्होंने किया है उससे मज़ीद उन्होंने क्या अचीव किया? वो मेंबर बन गए हैं, वो इलेक्शन करवा रहे हैं, उन्होंने क्या अचीव किया है? यही अचीव कर सकते हैं कि नमाजें ख़राब करा सकते हैं, बाकी तो जो कानून कहता है वही होगा और वो होके रहेगा। और ये कानून हमारा नहीं है, और आइंदा भी बारहा हमने कहा हुआ है, अभी भी हम कहते हैं कि इसको हम ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। ये एक अवामी ट्रस्ट, गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, सारे कम्युनिटी को यकजा किया जाए और वो कम्युनिटी के लोग अपने अपने नुमाइंदे दें, ताकि ये एक अवामी ट्रस्ट बन जाए, जैसा कि बाकी अदारे ट्रस्ट हैं। लेकिन वो तो कुछ कबीलों के ट्रस्ट हैं, कुछ इलाकों के ट्रस्ट हैं, जैसा कि क्वींस रोड मस्जिद है, ये नूर इस्लाम ट्रस्ट है, वो कुछ इलाकों के ट्रस्ट हैं, कुछ बरादरियों के ट्रस्ट हैं, कुछ ऐसे। लेकिन इसको हम एक अवामी ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, और हम सोच रहे थे कि ये जो सालसी कमेटी बनी थी, कोई इसी लाइनों पे सोच करके इसको करेगी, ताकि हमेशा के लिए ये इलेक्शन का दौरा ख़त्म हो, ट्रस्ट बन जाए, सब लोग इसमें शामिल हों, यहाँ पे जितनी भी ये गड़बड़ होती है या मतवक्को है ये ख़त्म हो जाए। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई और सोल्यूशन है ही नहीं। अल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, आपने ये भाई अली की सोच को देख लिया। अपोजिशन को या दूसरी कोई भी जो जमातें हैं उनको इन्होंने क्लियर मैसेज भी दिया है। तो मेरी ये उन सब लोगों से दरख्वास्त है कि जिन जिन के जो कंसर्न्स हैं, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन चुका है या आगे हम फर्दर इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं, तो वो मिलजुल कर बैठ कर कोई भी जो है वो हल वो टेबल पर होगा। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मस्जिद के ऊपर जहाँ पर नमाज होती है उसमें अगर शोर शराबा करके सिर्फ और सिर्फ वो, ये तो आप खुद अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या हासिल कर रहे हैं, लोगों की नमाजें खराब कराओगे। नहीं, वो तो अगर उनको कोई इशू है यहाँ पे कमेटी से बात करें, या मुख्तलिफ अदारे हैं उनसे जाके कहेंगे भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, जैसा कि हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ता है जब ब्रीच ऑफ पीस का मसला होता है। सो इस पर मैं ख़त्म करूँगा। लिहाजा जी ये सब के लिए क्लियर मैसेज है। अल्लाह ताला ही हम सब को हामी नासर हो। तो नाजरीन, फिर किसी और जो शख्सियत है उसके भी व्यू हम लेंगे, और ये मेरी जो एक समझता हूँ कि मेरी ये जॉब बन चुकी है कि हर बंदे को मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा, और जिसको भी जो भी कहना है इंशाल्लाह कैमरे के सामने आए और मुझसे रब्ता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।